بارش کے 3 سپیل شہر میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش نہیں۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور رکشے بند ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ شہر لاہور میں بادل جم کر برسے۔ 24 گھنٹوں میں بارش کے 3 سپیل برس چکے۔ مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 6 گھنٹے 47 منٹ تک بارش ہوئی۔ شہر کے نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ چوک ناخدا، سمد آباد، اچھرا، کلمہ چوک میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کہنا ٹاؤن شپ، گلشن راوی، بڈن روڈ، کرتبہ چوک، جوہر ٹاؤن، گلبرگ کے علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور رکشے بارش کے پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی میں 256، پانی والا تالاب 254، کرتبہ چوک 252، گلشن راوی میں 236 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نصر ٹاؤن میں 231، علامہ اقبال ٹاؤن میں 212، تاج پورہ میں 191، جوہر ٹاؤن میں 176 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 171.5، مغل پورہ میں 165، چوک ناخدا میں 153، گلبرگ میں 142 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر رہا۔ لیسکو کے 90 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ لاہور کے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ میں بجلی کے تار ٹوٹ کر بارش کے پانی میں گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے 15 سالہ حمزہ یوسف جام بحق ہو گیا، جبکہ 14 سالہ علی عباس زخمی ہو گیا۔ سوئے اصل اور علی حسین آباد میں 2 گھروں کی چھتیں گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ شہر میں بارش کے طوفانی اسپیل نے اداروں کی کارکردگی کو عیاں کر دیا۔ موسلادھار بارش نے کلمہ چوک انڈر پاس کو تالاب بنا دیا۔ کلمہ چوک منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ دوسری طرف مبین شہید انڈر پاس میں پانی بھرنے سے گاڑی ڈوب گئی، جبکہ مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ بارش کے طوفانی سپیل سے اداروں کی کارکردگی عیاں ہو گئی۔ شہر میں حال ہی میں بننے والے منصوبے بھی زیر آب آ گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں 3 فٹ تک بارشی پانی جمع ہو گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 16 مئی کو ہی اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ CBD پنجاب نے منصوبے کی ری ماڈلنگ پر کام کیا تھا۔ منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ پہ لاگت آئی۔ پری مونسون بارش میں 4 ارب 20 کروڑ پہ ڈوب گئے۔ سیوریج سسٹم پر خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود نکاسیہ بر وقت ممکن نہ ہوا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کی سیوریج لائنیں بند ہونے سے بارشی پانی جمع ہوا۔ انڈر پاس سے گزرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہو گئیں۔ شہر میں طوفانی بارش کے باعث کئی انڈر پاس پانی میں ڈوب گئے۔ کیپٹن مبین شہید انڈر پاس بھی پانی میں ڈوب گیا۔ انڈر پاس میں 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ ایک گاڑی بھی انڈر پاس میں ڈوب گئی۔ مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن کو سگنل فری بنا دیا، مگر نکاسیاب کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ بارشی پانی کا بروقت نکاس نہ ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے شہری اذیت میں مبتلا رہے۔ شہر میں بارش کے طوفانی سپیل کے نقصانات۔ گلبرگ میں سروس روڈ بیٹھنے سے واسا کی واٹر سپلائی لائن ٹوٹ گئی۔ گلشن راوی نالا اوور فلو ہونے پر گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور تیز بارش کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گیا۔ پری مونسون کے طوفانی سپیل سے شہر میں تباہ کاریاں۔ بارش کے باعث گلبرگ مین بولیوارڈ پر سروس روڈ بیٹھ گئی۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کی جانب سے پلازا تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کی جانب سے سروس روڈ کے نیچے پائلنگ کی جا رہی تھی۔ پائلنگ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سروس روڈ بیٹھ گئی۔ واسا کی 10 انچ کی پائپ لائن بھی سڑک بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ LDA اور واسا کا نقصان پرائیویٹ ڈیولپر سے ریکور کرنے کا فیصلہ۔ LDA نے پرائیویٹ ڈیولپرز کو نقصان کی رقم جمع کروانے کا نوٹس جاری کر دی۔ شہر کی مرکزی ڈرینوں کی ڈی سلٹنگ میں کوتاہی بھی سامنے آ گئی۔ گلشن راوی نالا اوور فلو ہونے سے گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کینال روڈ پر جیل انٹرسیکشن کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہوئی۔ ٹریفک وارڈنز نے اپنی مدد آپ کے تحت درخت کو ہٹایا اور کینال روڈ پر ٹریفک بحال کی۔ گلبرگ میں سڑک بیٹھنے کے معاملے پر کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا کا نوٹس۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم دے دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں موسلادھار بارش، جنرل اسپتال گنگا رام اور جناح اسپتال میں بارشی پانی جمع۔ اسپتالوں میں مریضوں اور عملے کو شدید دشواری کا سامنا رہا۔ علاج، معالجہ اور طبی سہولیات متاثر رہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔
शहर में मूसलाधार बारिश से सरकारी अस्पतालों के पोल खुल गए। सरकारी अस्पतालों का सीवरेज सिस्टम भी फेल हो गया। जनरल अस्पताल की अकबी 100 फुट से जायद दीवार गिराए जाने से आबादी का पानी जनरल अस्पताल में दाखिल। पानी अस्पताल के आउटडोर, इंडोर, एडमिन ब्लॉक और हॉस्टल्स के बाहर जमा हो गया। मरीजों, लवाहिकीन और डॉक्टर्स समेत अमले को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। जनरल अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि पानी की निकासी के लिए मुलाजमीन मुतहर्रिक हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही इंतजामी डॉक्टर मौके पर पहुंच गए। दीवार गिराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। गंगाराम अस्पताल में बारिशी और गटर का पानी मुख्तलिफ वार्ड्स और स्टोर में चला गया। गंदा पानी अस्पताल के तहखाने में मौजूद फार्मेसी में भी घुस गया, जिससे बदबू फैल गई। गटर और बारिशी पानी से अस्पताल में इन्फेक्शन फैलने का खदशा है। अस्पताल की फार्मेसी पर मौजूद स्टाफ गंदे पानी की वजह से परेशान, अद्वियात भी मुतासिर हो सकती हैं। बारिश के पानी से जिनाह अस्पताल के उमूर भी मुतासिर रहे। बारिशी पानी जिनाह अस्पताल के तहखाने और स्टोर में भी चला गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से निकासी आब के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सैलाबी सूरत हाल और शहरियों की परेशानी का नोटिस ज़िले इंतज़ामिया को निकासी आब के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की। कहते हैं शहरियों को तकलीफ़ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती नहीं दिखाई जाए। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सैलाबी सूरत हाल और शहरियों की परेशानी का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया को निकासी आब के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहते हैं कि शहरियों को तकलीफ़ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सैलाबी सूरत हाल और शहरियों को परेशानी का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया को निकासी आब के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत। कहते हैं शहरियों को तकलीफ़ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती ना दिखाई जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में बारिश का पानी निकालने का सिलसिला जारी है। एमएस ने दीवार तोड़कर पानी दाखिल करने वाले अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। तर्जुमान जनरल अस्पताल का कहना है कि रात गए तक पानी निकालने का अमल मुकम्मल किया जाए। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जनरल अस्पताल में बारिश का पानी निकालने का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा सजाद हैदर से। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में बारिश का पानी जमा होने का जो मामला है, इस हवाले से सर गंगाराम अस्पताल और जिना हॉस्पिटल से पानी निकाल लिया गया है, जबकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में पानी निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। एमएस जनरल हॉस्पिटल ने दीवार तोड़कर पानी भेजने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। जनरल अस्पताल के पीछे आबादी वालों ने अस्पताल की दीवार तोड़कर आबादी का जो मुकम्मल पानी था वो जनरल हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया और सर गंगाराम अस्पताल और जिना अस्पताल से जो है वो पानी निकाला जा चुका है। रात गए तक तर्जुमान का कहना था कि पानी निकालने का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से एमएस की जानिब से पानी भेजने वालों के खिलाफ जो है वो एफआईआर की दरखास्त सजाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बायस सूबाई इंतज़ामिया पीटीएम में रेस्क्यू 1.22 और वासा को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुतल्लिक़ ऑफिसर खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आब के लिए कोई कसर उठाई ना रखी जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आब के काम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि निकासी आब के काम में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी के लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाएँ। मोहसिन नकवी का कहना है कि अब खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फ़ौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बायस सूबाई इंतज़ामिया पीटीएम में रेस्क्यू 1.22 और वासा को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुतल्लिक़ ऑफिसर खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आब के लिए कोई कसर उठाई ना रखी जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आब के काम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि निकासी आब के काम में गफलत बर्दाश्त नहीं। ट्रैफिक की रवानी के लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाएँ। मोहसिन नकवी का कहना है कि खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फ़ौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जिना अस्पताल का दौरा। हुसैनाबाद में घर की छत गिरने से ज़ख्मी होने वाली 30 साल आयशा की अयादत और तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कहते हैं बारिशों के बायस हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद की अयादत और इलाज को मॉनिटर कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए।
जी बिल्कुल, डॉक्टर जुहैद अकरम ने हुसैनाबाद में घर की छत गिरने से जख्मी होने वाली 30 साल आयशा की अयादत की और तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर प्रिंसिपल अमर इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, MS जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद और दीगर डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। आयशा का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जुहैद अकरम को ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जुहैद अकरम ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर तूफानी बारिशों के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद की आदत और इलाज को मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब तूफानी बारिशों के नतीजे में गिरने वाले घरों के मालकान का तमाम नुकसान पूरा करेगी। जिना अस्पताल लाहौर ने तय खाने की मुकम्मल सफाई कर दी है। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में इसी वाले से 5 बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया है। पंजाब में कोविड-19 की प्री टेस्टिंग का आगाज भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तूफानी बारिशों के मुतासरा खानदानों की माली इमदाद की जाएगी। हर बार कज़ाफी स्टेडियम के बाहर 6 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। नजम सेठी से मुलाकात में इस हवाले से कज़ाफी स्टेडियम का निज़ाम बेहतर बनाने की भी इस्तदा की गई है और पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों को एक हफ्ता में बारिशों के पानी को महफूज बनाने और निकासी आपके लिए मनसूबा की फिजिबिलिटी जो है उसको बनाने की हिदायत भी की गई है। जी, निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। सजाद हुसैन अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मशहूर गुलकारा नूरुलैन ऐनी भी टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली। महकमा एक्साइज ने 1,98,000 रुपये मौके पर वसूल कर लिए। होंडा सिविक मॉडल 2011 के टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए गए थे। लिबर्टी में टीम ने गाड़ी को रोका और उसी मौके पर रिकवरी की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा है, मशहूर गुलकारा नूरुलैन ऐनी भी टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली हैं। महकमा एक्साइज ने 1,98,000 रुपये मौके पर वसूल कर लिए। होंडा सिविक मॉडल 2011 के टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए गए थे। लिबर्टी में टीम ने गाड़ी को रोका और मौके पर रिकवरी की। मौके पर रिकवरी की है। मशहूर गुलकारा नूरुलैन ऐनी भी टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें और रूज पर तेज बारिश खरीदारों को रोक न सकी। व्यापारियों और खरीदारों के रश से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मुनफरिद नस्ल के जानवरों ने मंडी की रौनकें बढ़ा रखी हैं। मंडी से बारिशी पानी निकाल दिया, कीचड़ ताहाल मौजूद। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में और आज सुबह होने वाली तेज़ बारिश जो है वो ख़रीदारों को रोक नहीं सकी। इस वक्त शाहपुर कांजरा में अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ग्राहकों का और उसके अलावा जो व्यापारी हैं उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है। ये आज का दिन जो है वो कल के दिन से भी ज़्यादा आज रश है और व्यापारियों का ये कहना है कि आज 15-20 दिन बाद जो है वो पहला दिन हुआ है जिस दिन ग्राहकों का इतना ज़्यादा रश है और ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि छोटी जो ईद कुर्बा हैं उसमें भी चंद गिनती के दिन बाकी हैं। इस वजह से हर कोई जो है वो अपनी कुर्बानी लेने की भाग दौड़ में जो है वो मसरूफ़ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं मंडी सूरत हाल की बात करूँ तो तेज़ बारिश के बाद जो है आज सुबह जो है मंडी के अंदर खासा पानी जमा हो चुका था, जो इंतज़ामिया की जानिब से शक्कर पंप्स लगा कर निकाल दिया गया है। उसके अलावा अगर ताहाल जो है वो कीचड़ अभी तक मंडी में मौजूद है, जबकि मंडी इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब तक ये जानवर जो है और जो ख़रीदारों का रश है कम नहीं होता हम लोग हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे खदशा है कि जानवरों को नुकसान पहुँच सके। और जो मंडी में आने वाले ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि मंडी जो है वो खासी महंगी है, लेकिन घर से ज़हन बनाकर आए थे क्योंकि जो महंगाई है वो चारों तरफ है, उस वजह से अंदाज़ा था। और इस वक्त जो मंडी है यहाँ पर हर किस्म का जानवर और हर नस्ल का जानवर मौजूद है, जिनके अगर मैं वेड़ों की रेट की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 लाख से शुरू होकर 35-35 लाख तक जो है वो रेट जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं वज़न की बात करूँ तो 4 या 5 मन से लेकर 50-50 मन तक के जानवर मौजूद हैं। और अगर मैं छोटे जानवरों की बात करूँ तो बकरों में जो है वो 80,000 से लेकर तकरीबन 2-2 लाख तक का रेट जा रहा है। और उसके अलावा जो दुम्बे हैं उनका भी रेट ऐसे ही है, जैसे जो डिमांड है उनकी 80,000 से शुरू होकर 2-2 लाख तक जा रही है। उसके अलावा जो जानवर मुनफरिद हैं या फिर जो जानवर कुछ नस्ल या रंगत से दूसरे जानवरों से मुनफरिद है उनके खूबसूरती के पैसे जो हैं वो ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि कुछ जगहों पर जो है वो मंडी में रश बढ़ने की वजह से रेट ज़्यादा मांगा जा रहा है, लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो रेट जो है वो महंगाई के हिसाब से मुनासिब मांगा जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल
हाल जो मंडी की सूरत हाल है, तो यहाँ पर जो है आज रात के इस पहर भी जो है शहरियों की एक बड़ी तादाद है, और शहरियों का ये कहना है कि कीचड़ ज़रूर है, लेकिन पहले से ही ज़हन था कि सुबह से बारिश हुई हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें पानी की तो पानी देखने में नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना है शहरियों को कीचड़ से किनारे किनारे से गुजरना पड़ा है, लेकिन फिर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मंडी में मौजूद है। उसके अलावा इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई उस वजह से जो दूसरी आर्जी मंडियाँ हैं उनके भी जो व्यापारी हैं वो शाहपुर कांजरा का रुख कर चुके हैं, जिस वजह से उनको खासी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि जो मेन सड़क है, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको खाली कर दिया गया है, और उधर से जो है वो कीचड़ का भी सफाया कर दिया गया है। जबकि अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी जो है वो इस वक्त जो मेन सड़क है उसके ऊपर काबिज है, और इंतज़ामिया का कहना है कि हम लोग बार बार जो है इनको 12 दफ़ा कह चुके हैं कि ये जो जानवर है अपने बाड़ों में ले जाएं, या फिर जो है इनको सड़क से साइड पर करें ताकि सफाई मुकम्मल की जा सके। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि देर रात गई ही जो है वो हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि जो हैवी मशीनरी है उससे नुकसान होने का खतरा होता है। उसके अलावा अगर मैं सहूलियात ये बताएगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने खातिर खा इंतजाम किए हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे महकमा मौसमियात की जानिब से 30 जून तक जो है वो बारिशों का उंदिया दिया गया है। उसी हिसाब से इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारे पास जितने वसाइल मौजूद हैं उसको हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और रात गए और बाकायदा 24 घंटे जो है वो सफाई का अमल यहाँ पर जारी रहता है मंडी के अंदर। इनके पास जो मशीनरी जो हमने देखी उसमें वाटर सकर पम्प्स हैं, उसके अलावा जो ट्रैक्टर्स के आगे ब्लेड्स लगाए गए जिनसे कीचड़ उठाया जाता है, और हर वक्त जो है यहाँ पर सफाई की जाती है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर बारिश मामूल के मुताबिक हो तो उसको काबू करने के लिए जो है इनके पास वसाइल मौजूद है, लेकिन अगर बारिश जो है वो मामूल से ज़्यादा होती है तो उसको निकासी आब के मसले को हल करने के लिए कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि शहरियों को जो है वो हर किस्म की सहूलत फराम कर सकें और उनको साफ़ रास्ता फराम कर सकें, जिससे शहरी जो है वो बाड़े तक पहुँच सकें और अपनी ईद कुर्बा का जानवर ख़रीद सकें। जी, और हमजा ये भी लास्ट पर बता दीजिएगा, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, जो मंजरनामा आपने बताया, आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशें भी होंगी, तो अभी के इंतज़ामात कैसे हैं? मौजूदा हालात के अंदर ट्रैफिक की रवानी कैसी है? और दूसरा, जो व्यापारी हैं और ख़रीदार हैं उनके लिए पानी, पीने का जो पानी है वो भी वहाँ पर मुयस्सर है और वॉशरूम की सहूलत भी है? हाँ जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जो है वो पीने का साफ़ पानी वाटर टैंक्स के ज़रिए जो है वो टैंकियों में ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ पे हर वक्त जो है वो पानी पीने वाला मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं ट्रैफिक सूरत हाल की बात करूँ तो ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि इस वक्त मंडी के अंदर व्यापारियों का और जो ख़रीदार है उनका खासा रश है, जिस वजह से जो गाड़ियाँ उनको गुजरने में मसला हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंतज़ामात की, तो जो पानी है वो क्योंकि खासा जमा हो चुका था, लेकिन सुबह के वक्त तकरीबन जो है वो मंडी इंतज़ामिया ने जो बारिशी पानी है उसको बाहर निकाल दिया था, लेकिन ताहाल अभी तक कीचड़ मौजूद है, जिसके बारे में इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो भी रात गए ब्लेड्स के साथ और हैवी मशीनरी के साथ साफ़ कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं मज़ीद सहूलियात की बात करूँ तो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उसके अलावा जो वेट हैं, जो बहुत शुक्रिया हमजा, आपने सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। शाहपुर कांजरा में वो मौजूद थे और इंतज़ामात के हवाले से आगाह किया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जामियात में मनशियात के इस्तेमाल के इक़्तिदारों के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मनशियात जैसी बुराई से दूर रखने के लिए जामे मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। यासिन मलिक हमारे साथ है, मज़ीद उनसे अपडेट लेंगे। यासिन, अपडेट कीजिए। जी, गवर्नर बलीग़ुर रहमान की ज़ेर सदारत आज गवर्नर हाउस लाहौर में एक ड्रग एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पर कायम कंसोर्शियम का हवाले से एक इजलास हुआ है। इजलास में जामियात में मनशियात के इस्तेमाल के तदारक के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात ज़ेर बहस लाई गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने कहा है कि तलीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इन्हें मनशियात जैसी बुराई से दूर रखने और साजगार माहौल फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटियों में एक जामे मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन की 2021 की पॉलिसी एक मौसर और जामे पॉलिसी है। गवर्नर ने कहा कि तमाम वाइस चांसलर की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने इस हवाले से कहा कि फैकल्टी की तरबियत करने की भी ज़रूरत है, और पंजाब ने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा को मुनशियात के जो बुरे असरात के बारे में आगाह करने के लिए बाकायदा आगाही मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है कैंपसेस में तलबा को काउंसलिंग की सहूलत
ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ڈرگ اینڈ نارکوٹکس پر قائم کنسورشیم ممبران نے گورنر پنجاب کو مختلف تجاویز طے کردہ سفارشات سے تفصیلی آگاہ کیا۔ اجلاس میں کنسورشیم کے کنوینئر اور وائس چانسلر بہادر ذکری یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، وائس چانسلر نیشنل میڈیکل کالج یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف اور دیگر شامل تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین ملک، آپ نے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے پہلے ہی فیصلہ موجود ہے، سابق دور میں آرمی کورٹس کے تحت سزائیں دی گئیں، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ کی وزیر رانا تنویر حسین کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے تحت عام شہریوں کو سزائیں دی گئیں، خصوصی کورٹس کے حوالے سے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ عام دہشت گردی نہیں، یہ ملٹری پریمیسز اور ان کی جو انسٹالیشن ہے ان پہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو اس پہ حملے ہوئے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹری کورٹس میں ہر طرح سے مینڈیٹ ہے کہ وہ اس پہ ٹرائل ہو۔ نواز زرداری کی متوقع ملاقات کے حوالے سے رانا تنویر کا کہنا تھا کہ سیاسی لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ملاقات میں الیکشن سمیت قومی معاملات پر بات ہوگی۔ مختلف حوالوں سے سیاستدان جو بڑی سینئر قیادت ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ملکی جو مسائل ہیں ان کے متعلق بات ہوتی ہے۔ ابھی ظاہر ہے الیکشن آنے والے ہیں اور 12-13 اگست کو یہ حکومت کا ٹائم جو ہے وہ یہ اسمبلی کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر رانا تنویر نے وائس چانسلر ڈاکٹر طیبہ ہینا کے ہمراہ نمائش کا دورہ کیا۔ نمائش میں 300 طلبہ کے فائنل تھیسس فن پارے پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ ہم صوبے اور وفاق دونوں میں حکومت بنا کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں لبرٹی جلسے میں ہمارے جھنڈے اور بینر کرینے لگا کر اتارے گئے۔ مبین حیدر کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے ماڈل ٹاؤن دفتر میں میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی قائدین نے فیصلہ کیا ہے پارٹی ٹکٹ کے معاملے پر بورڈ تشکیل دیے جائیں گے، لاہور کی تنظیم اور ڈویژنل صدر نگرانی کریں گے، 10 روز میں امیدواروں کے نام فائنل کر کے مرکز کو بھیج دیے جائیں گے۔ صوبے اور وفاق دونوں میں حکومت بنا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ اسلم گل کا کہنا تھا کہ آج سے ہی الیکشن کی تیاریاں کی جائیں تو الیکشن کے قریب بوجھ نہیں پڑے گا۔ ان دنوں میں اگر آج ہم شروع کریں گے الیکشن کی تیاریاں، اس میں پولنگ ایجنٹ بھی ہیں، شعبہ خواتین کی پولنگ ایجنٹ ہوں گی، وہاں پہ نوجوانوں کی اور کیمپوں کے لیے اگر آج سے ہی ہم شروع ہو جائیں تو ہمارا الیکشن کے قریب جا کے جو ہمارے اوپر ایک بوجھ آتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اسلم گل نے مزید کہا کہ لبرٹی چوک میں تاریخی جلسہ ہونا تھا لیکن ہمارے جھنڈے اور بینرز کرینے لگا کر اتارے گئے، چاروں طرف سے جلسے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کے پیچھے کون ہے ہمیں بتایا جائے۔ ہمارے کارکنان نے جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، ہم ہمیشہ ملک اور جمہوریت کے لیے کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ ہمارے جھنڈے اور بینر کرینے لگا کے اتارے گئے، ہمیں کلمہ چوک بند کیا گیا اور سین چوک بند کیا گیا اور مین مارکیٹ کی طرف سے جو سامنے سے آنا تھا اس کو بند کیا گیا، جی میں قذافی اسٹیڈیم کو بند کیا گیا، چاروں طرف اس جلسے کو کارڈن کر کے بند کیا گیا۔ کیوں؟ اسلم گل نے جالوں کو پرعزم ہو کر الیکشن کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کی۔ تائیں لیسکو کے زیر انتظام اسکولوں کے اساتذہ کی 7 روزہ ٹریننگ اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹریننگ سیشن میں کمیونیکیشن سکلز اور ٹیچنگ کے مختلف امور کے بارے میں بتایا گیا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ لیسکو کی شعبہ ایڈمن کی جانب سے لیسکو کے تمام اسکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ مکمل۔ علی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں 7 روزہ ٹریننگ سیشن کی اختتامی تقریب میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان، چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر و دیگر افسران تقریب میں شریک ہوئے۔ ٹریننگ سیشن میں کمیونیکیشن سکلز، نئی ٹیکنیکس اور ٹیچنگ کے مختلف امور کے بارے میں بتایا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ لیسکو کے اسکولز کی عمارتیں بہترین ہیں، 15 اگست تک ڈیولپمنٹ کے تمام کام مکمل کرنے ہیں۔ آپ نے 15 اگست تک آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام مکمل کرنے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ
جو ہم نے کمپیوٹر لیب ہے وہ انشاءاللہ بنانی ہے. جو سٹاف رومز ہیں ہم نے ان کو بہترین فرنیچر کے ساتھ ہم نے اور بہترین انوائرمنٹ اور ایئر کنڈیشن لگے ہونے چاہیے. ہم نے ان کو بہترین انداز کے اندر ڈسپینسر نئے آنے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو کلاس رومز ہیں ہم نے بڑا واضح کہہ دیا کلاس روم سارے اپ گریڈ کر دیں. اختتامی سیشن میں چیف ایگزیکٹو لیسکو اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ٹریننگ مکمل کرنے والے اساتذہ میں اسناد تقسیم کی.